हो गया हो गया। थैंक यू कशिश। चलो बच्चों आ गए सब लोग, कितने लोग बाकी है? वी विल वेट जस्ट फॉर 2 minutes देन आई विल स्टार्ट, ठीक है? तब तक कल वाला सब रिवाइज करो। We were proving the structure of glucose. So there was the first test which indicates that it is containing straight chain, 6 carbon atoms in a straight chain. That was test with HI. ठीक है? It is giving you a cyclohexane, sorry not cyclohexane, N-hexane. फिर उसके बाद हमने 2 और टेस्ट देखे, which was hydroxylamine hydrochloride, ठीक है? And reaction with HCN. These two reaction indicates the presence of carbonyl group. Now if that carbonyl group is ketone or aldehyde, वो अभी तक पता नहीं है, but it is just confirming that your compound is containing carbonyl group. It may be aldehyde, it may be ketone also. Next is reaction with bromine water. If you're going to do the reaction with the bromine water, this group, aldehydic group, is converted into the acid, correct? This indicates that your aldehydic group is present into the glucose, means your carbonyl group is your aldehydic group. उसके बाद हम लोगों ने क्या प्रूव किया कि it is having primary alcohol. So if I'm going to do the reaction with glucose and diluted HNO3, you will get the saccharic acid. Even though if you're going to treat it with the gluconic acid, it will give you a saccharic acid. So this reaction indicates the presence of one primary alcohol present in the glucose. अभी हम लोग को क्या प्रूव करना था कि we have 5 hydroxyl groups which are present in a sequence. They are present one after the another. ठीक है? So हाँ, 5 hydroxyl groups which are bonded to the 5 different carbon atom that we have to prove. ठीक है बच्चों? तो अभी हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज आई थिंक रिएक्शन नंबर 6, रिएक्शन विद एसिटिक अनहाइड्राइड। एक मिनट रुक जाओ हाँ जरा, ये फर्स्ट पार्ट में ही रिएक्शन है, बाकी सब फिर पूरा थ्योरी 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 ही है। रिएक्शन नंबर 6, दैट इज रिएक्शन विद एसिटिक अनहाइड्राइड। ओके, एसिटिक अनहाइड्राइड क्या है? CH3COCH3। अभी देखो हाँ कैसे होगा रिएक्शन। CHO CHOH 4 times and then CH2OH. This is your glucose. I will take over here 5 molecules of CH3CO twice O. This is your acetic anhydride. ठीक है? अब आप क्या करोगे? रिएक्शन क्या मिलेगा पहले मैं लिखती हूँ फिर आपको समझाती हूँ, ठीक है? So I will write down here first of all CHO. यहाँ पे हो जाएगा CHO and then C double bond O CH3 4 times, नीचे भी हो जाएगा CH2O C double bond O CH3. It is called as glucose pentacetate. ये रिएक्शन देख के डिफिकल्ट लग रहा है बट इट इज वेरी सिंपल. आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू and we will get over 5 molecules of acetic acid. अभी देखो हाँ, ये मेरा रिएक्शन है. How many OH groups are there? Sorry, how many these groups are there? 4. यहाँ से जो एक H है, this one H. अभी ये acetic anhydride को कैसे लिखेंगे? CH3C double bond O O C double bond O CH3. Am I right? Just pay attention, don't get confused. It is very very simple. ये aldehyde तो छोड़ दो, ये अल्कोहल है, ठीक है? So I am writing this acetic anhydride like this. ये हो गया CH3CO twice, CH3CO twice and oxygen. तो ये जो H है, ये H किससे रिप्लेस हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O CH3 से, ठीक है? कितने H है मेरे पास? 4. तो कितने से रिप्लेस हो जाएगा? तो हमने कितना लिया पे? 5 लिया ना, तो ये 4 इधर पे आ गया, तो मेरा कंपाउंड क्या हो गया? CHO. फिर मैंने इसको CHO ऐसे ही रखा यहाँ तक, H की जगह पर आ गया C डबल बॉन्ड O CH3 4 टाइम्स. इतना समझा? अब बचा एक है, एक कहाँ पे जाएगा? अभी ये वाला H भी रिप्लेस हो जाएगा क्योंकि अल्कोहल है.
So you are going to write down your CH2O, वैसे ही लिखा. This H is replaced by C double bond O CH3. 5 हो गए. अब मेरे पास कितने H बाहर आए? 5H. ये कितना बचा हुआ है? 5. तो मुझे क्या मिलेगा? 5 एसिटिक एसिड. आया समझ में अभी? Yes or no? पहले इतना बोलो. Once again, I am just repeating. See what I said over here. We have glucose, correct? You are going to prove that it is having 5 hydroxyl groups which are present in sequence to the 5 different carbon atoms. ठीक है, तो how many H are there? 4. All these H are replaced by CH3 C double bond O. हो गया replace. ये देखो ऐसे लिखा है CHO CHO. H की जगह पर क्या लिखा? C double bond O CH3 4 times. 4 यहाँ पे यूज हो गया. अभी एक बचा है. Again this H is replaced by C double bond O. ये देखो ऐसे ये CH2O CH2O. हो गया 5. ठीक है. 5 molecules of acetic anhydride has been used. अब क्या बचा है मेरे पास? यहाँ से 4 हाइड्रोजन निकला था, यहाँ से 1 हाइड्रोजन निकला था, टोटल 5 हो गया. Those 5 will combine with these 5. तो CH3COOH कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे? 5 मॉलिक्यूल्स. That is why it is called as glucose pentacetate. समझा? This is called as glucose pentacetate. Now it is clear. Give me a quick reply. Is it very clear? मिस वो लास्ट का बताओ ना, वो एच का बोला ना आपने. ये देखो ना, यहाँ पे कितने एच थे? यहाँ से 4 एच निकाला ना. एक एच को 4 एच को रिप्लेस किया, उसकी जगह पर सी डबल बॉन्ड और CH3 गया. ठीक है. यहाँ से 4 एच निकला ऊपर से. ये भी एक एच को बाहर निकाला, उसकी जगह पर क्या डाल दिया? सी डबल बॉन्ड और CH3 इधर आ गया. टोटल कितने एच हो गए? 5. ये आधा पार्ट बचा है ना मेरा, क्योंकि मैंने आधा 5 ही यूज किया. अभी आधा 5 बचा हुआ है, तो मैंने उसके साथ क्या लिख दिया? 5 एसिटिक एसिड, क्योंकि CH3 COO और H कितने एच थे? 5. तो आई हैव रिटन ओवर हियर 5. क्लियर? नहीं समझा तो वापस से पूछो. एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? How many molecules of acetic anhydride will be required to form glucose pentacetate? How many molecules are required? बोलो. 5. 5 molecules are required. अभी भी किसको नहीं समझा? प्लीज आस्क. I know this is not very simple reaction. हाँ ये देखो. What I said, you have CHOH 4 times, then CH2OH. ठीक है. What you are going to prove that you are having 4 hydroxyl groups which are attached to the 5 different carbon atoms. Am I right? Now this one H is replaced by C double bond or CH3. ऐसे कितने H है? 4. तो चारों के चारों रिप्लेस हो गए. C double bond और CH3. मैं अलग अलग भी लिख सकती थी, बट मैंने कंडेंस्ड फॉर्म में लिखा है ना. तो C डबल बॉन्ड और CH3 4 हो गया. यहाँ वाला एक H भी चला गया, तो C डबल बॉन्ड और CH3. तो कितने यूज हो गए? यहाँ पे 5 यूज हो गए. मतलब ये CH3 C डबल बॉन्ड O 5 यूज हो गया. अब क्या बचा है? CH3 C डबल बॉन्ड O बचा है. यहाँ से 4 हाइड्रोजन बाहर आया, यहाँ से 1 हाइड्रोजन बाहर आया, टोटल 5. मतलब आई विल गेट ओवर हियर CH3COOH 5 टाइम्स. हाँ मिस समझा अभी. अंडरस्टूड नाउ? सबको समझ आ गया? अभी भी नहीं समझा है तो पूछो. इट इज फाइन, क्योंकि बहुत ही डायरेक्ट वाला नहीं है, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को. 100% अंडरस्टूड. दैट इज व्हाई आई हैव रिटन दिस एसिटिक एनहाइड्राइड लाइक दिस. ठीक है. C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3. तो ये पूछा एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए. हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड इज रिक्वायर्ड फॉर द formation of glucose pentacetate using glucose? So 5 molecules are required. एक बार क्वेश्चन पूछा था, how will you neutralize this acid 5 acetic acid which is formed? तो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं pyridine. pyridine is a base. pyridine का स्ट्रक्चर ये होता है. ठीक है. तो ये बेस क्या करता है? इसको न्यूट्रलाइज कर देता है. तो हमको जो मिलता है दैट इज ग्लूकोज पेंटाएसिटेट. अब ये रिएक्शन क्या इंडिकेट करता है? दिस reaction indicates the presence of 5 hydroxyl groups which are bonded to 5 different carbon atoms in glucose.
कैसे पता चला 5 डिफरेंट कार्बन एटम पे है? क्योंकि मैंने यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल यूज किया। एक ही यूज किया होता तो सभी एक ही पे अटैच्ड होता, लेकिन मैंने यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल यूज किया। दैट इज व्हाट हैज बीन प्रूव्ड दैट यू आर हैविंग 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। उसमें से 4 सेकेंडरी था और एक प्राइमरी था, जो आपने इसके पहले वाले रिएक्शन में प्रूव किया है। ठीक है, सो इट इज कंटेनिंग 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स which are attached to the 5 different carbon atoms in the glucose molecule. क्लियर बच्चों? अभी में ऐसा लिखा हुआ है, इफ यू वांट इसकी जगह पर आप ये भी लिख सकते हो, यू विल राइट डाउन दिस एंड 5 एसिटिक एसिड। ये तो समझाने के लिए दिया था, ये नहीं लिखा तो भी आया था मैंने। इफ यू वांट यू कैन राइट डाउन दिस, दिस एंड दिस, और दिस एंड दिस, जो आपको ठीक लगे। ये आपका बाय प्रोडक्ट है। इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड हाउ विल यू neutralize the acetic acid which has been formed, so we are going to use over here pyridine. Pyridine will neutralize the acetic acid which will be formed. Understood बच्चों? Any question in this? Please copy down this. कुछ भी नहीं समझा होगा तो please feel free to ask. Don't hesitate. ये सेम ही है, हाँ, ये वाला, ये सब सेम ही है। ये प्रोडक्ट्स लिखा है मैंने, तो इट इज सेम ओनली। जस्ट टू अंडरस्टैंड यू कैन राइट डाउन लाइक दिस ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। अभी भी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक है? Please notify once you're done with the writing part. I hope everybody understood. डन बच्चों? ओके ओके, लिख लो फटाफट, फिर मुझे बोलो।
हो गया इतना टाइम? हेलो हेलो। Yes, ma'am. Done. ओके चलो, अभी नेक्स्ट विल स्टार्ट विद द ऑप्टिकल आइसोमर्स इन द ग्लूकोज। अभी ऑलरेडी मैंने आपको आइडिया दिया है व्हाट आर ऑप्टिकल आइसोमर्स, अभी सबको अच्छे से आता होगा, ठीक है। नाउ ग्लूकोज इज हैविंग 4 chiral center, yesterday only we have done, so it is having 2 raised to n, मतलब 2 raised to 4 means 16 optical isomers are possible, ठीक है। So depending upon that you have to also decide D and L configuration, ठीक है। So आपको पता होगा what is D? D configuration is called as dextrorotatory, जो होता है आपका clockwise, पढ़ा है ना ये HDA में। डेक्स्ट्रोरोटेटरी इज क्लॉकवाइज मतलब ऐसा, एंड लीवो होता है एक, लीवो सॉरी स्मॉल एल होता है, लीवो रोटेटरी इट इज योर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे उल्टा घूमता है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज इज डेक्स्ट्रो, एंटी क्लॉकवाइज इज लीवो। तो इसको या तो स्मॉल डी लिखते हैं, इसको स्मॉल एल लिखते हैं, या फिर यू कैन राइट डाउन डी एंड एल, या फिर प्लस और माइनस लिखते हैं, ठीक है। तो योर ग्लूकोज इज जनरली डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ठीक है। दैट इज वाई ग्लूकोज इज ऑल्सो टर्म्ड एज डेक्सट्रोज. Another name for the glucose is also called as dextrose because it is generally dextrorotatory, means it is rotating clockwise direction में, ठीक है। तो आप हमेशा ग्लूकोज के आगे क्या लिखोगे? डी, या फिर आप क्या लिखोगे? प्लस, या फिर आप क्या लिखोगे? कैपिटल डी, ठीक है। अब है ना, इसको डी और एल निकालने का एक और तरीका है इन द केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जस्ट अ सेकेंड, आई विल जस्ट टेल यू. Suppose I will take here an example of glyceraldehyde. ठीक है, I am taking here an example of glyceraldehyde. देखो ये हो गया CHO, ये हो गया OH, ये हो गया CH2OH, और ये हो गया H. अब इसका जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, ऑप्टिकल आइसोमर हो जाएगा इसका CHO, यहाँ पे हो जाएगा OH, here it will be H, here it will be CH2OH. यहाँ पे कितने chiral center है? एक ही है ना, there is only one chiral center, so 2 raised to 1 that is equals to 2. दो optical isomers आ गए, so I am writing this as star, this is also as star or asterisk, which indicates the chiral center. अब देखो हाँ, यहाँ पर जो मेरा सेकेंड कार्बन एटम है C2, दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज C3, तो C2 का जो OH है इट इज ऑन द राइट हैंड साइड, सो आई एम राइटिंग ओवर हियर D प्लस ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। अब यहाँ पर देखो C2 का OH ग्रुप जो है इट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सो इट इज रिटन एज L माइनस glyceraldehyde. आया समझ में? So when to the C2 carbon atom, OH is on the right hand side, it is called as D configuration, and when it is on the left hand side, it is called as L configuration. या तो उसको आप प्लस और माइनस भी लिख सकते हो, ठीक है। क्लॉकवाइज रोटेट होता है तो इट इज कॉल्ड एज डेक्स्ट्रो, एंटी क्लॉकवाइज होता है तो इट इज कॉल्ड एज लीवो. तो आपका जो ग्लूकोज है जनरली इट इज प्रेजेंट और स्टेबल in the form of D configuration, so it is called as dextrose. इतना समझा सबको अच्छे से? पहले इतना बोलो. कुछ डाउट है? कैपिटल डी कब बोलेंगे? जब आपका C2 का OH राइट साइड पे होगा. L कब बोलेंगे? जब आपका C2 का OH लेफ्ट हैंड साइड पर होगा. So it is called as D and L configuration. ठीक है. अब मुझे एक सवाल का जवाब दे दो. CHO इसको बोलेंगे, ऐसा जो लिखते हैं इसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला. CH2OH H OH OH H. दिस इज कंपाउंड नंबर 1. 1 2 3 CHO CH2OH H H H OH
OH OH। ठीक है, दिस इज कंपाउंड नंबर 2। मुझे बताओ इसमें से D कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, L कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है? C2 को देखना है, C2 को देखकर मुझे बताना है कि विच वन इज D कॉन्फ़िगरेशन, विच वन इज L कॉन्फ़िगरेशन। मैंने आपको बताया है, जब OH राइट पे होगा तो D, OH लेफ्ट पे होगा तो L। C2 देखो, C2 कार्बन नंबर 2 देखो, सेकेंड वाला L है और फर्स्ट वाला यस, दोनों भी L ही है ना। ये देखो, ये मेरा C2 है, ये मेरा C2 है, ये लेफ्ट पे है, ये भी लेफ्ट पे है, तो दोनों भी क्या हो गया, L कॉन्फ़िगरेशन। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। ओके, और अगर मैम नीचे वाले कार्बन को कंसिडर करेंगे तो? नहीं, नीचे वाले कार्बन को नहीं कंसिडर करना है, दैट इज द रूल। यू हैव टू कंसिडर ओनली दी फर्स्ट कार्बन एटम। एक सेकेंड ना, हाँ समझा बच्चों? ओनली यू हैव टू सी द कार्बन नंबर 2, C2 को देखना है। ठीक है, C2 को यू हैव टू सी। अगर OH लेफ्ट पे हुआ, कैसे याद रखने का, L फॉर लिवो, L फॉर लेफ्ट, कैपिटल L। राइट पे गया तो इट विल बी D कॉन्फ़िगरेशन। पक्का हो गया इतना? आपके टेक्स्ट में बहुत सारा लंबा थोड़ा सा पैराग्राफ लिखा है, घर पे बैठ के आराम से रीड करो। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, अभी ग्लूकोज के बारे में क्या बोला पता है? They have said glucose is optically active compound. Of course, the compound which are having chiral center is always optically active. मैंने आपको बताया था, it will rotate the plane of plane polarized light. याद है? मैंने बताया भी था आपको, जब आप लाइट पास करते हो तो वो प्लेन पोलराइज लाइट या तो क्लॉकवाइज घूमता है या तो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। सो इट इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। उसका रोटेशन कैसे नोट करते हैं पता है? जो ये रोटेशन है ना, ऐसा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो रोटेशन इज ऑलवेज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ अल्फा D20, जिसका एंगल होता है +52.7 डिग्री। ठीक है, मतलब ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, इसलिए इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रोज। ये भी आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। व्हाट इज द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ डेक्स्ट्रोज? दैट इज द ग्लूकोज, सो इट इज +52.7 डिग्री। दैट इज व्हाट इज आल्सो कॉल्ड एज डी ग्लूकोज। डी मतलब ऐसा वाला डी ग्लूकोज, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज कैपिटल डी ग्लूकोज। समझ आया? और मिस फिर ये आपने एग्जांपल दिया है तो उसका क्या होगा, एल का? किस किसका बच्चा? मिस ये कौन सा का? ये इसका जो एंटी रोटेशन, क्लॉकवाइज होगा ना। हाँ मिस। इसका रोटेशन पूछ रहे हो? रोटेशन इसका दिया हुआ नहीं है तुम लोग के टेक्स्ट बुक में, वो आप नेट पे सर्च मारोगे ना, मिल जाएगा कि कितने रोटेशन पर वो एल पे घूमता है। अभी हम लोग किसके ऊपर फोकस करें, सिर्फ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज पे, तो दे हैव गिवन ओनली अबाउट द ग्लूकोज। इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव है मतलब इट विल रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट, पता है ना वो? ऐसे हम लोग ये लेते हैं, ऑर्डिनरी लाइट लेते हैं या फिर प्लेन पोलराइज लाइट लेते हैं, और यहाँ पे ग्लूकोज का सोल्यूशन लिया, तो जब ये लाइट इसमें से पास होगी ना, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाती है, ऐसे घूम जाती है, ये ऐसा स्ट्रेट रहता है। ठीक है, और अगर ये घूमेगी नहीं, बिल्कुल ऐसे रहेगी, तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो ये प्लेन क्लॉकवाइज घूमेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो उन्होंने क्या बताया, ग्लूकोज का रोटेशन कितना होता है, +52.7 डिग्री पे होता है। ठीक है, दैट इज क्लॉकवाइज, इसलिए क्या लिखा है, +52.7 डिग्री। ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। एंड इट इज रिटन एज अल्फा D20। रोटेशन है उसका, स्पेसिफिक रोटेशन। क्लियर? और ये जो एल वाला है वो नेट पे सर्च कर सकते हो कि व्हाट इज द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ योर दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड का नाम है, एक मिनट रुको, इस कंपाउंड का नाम क्या दिया हुआ है, थ्रियोज। इसको बोलते हैं थ्रियोज और इसको बोलते हैं राइबोज। तो आप उसका ऑप्टिकल रोटेशन डालोगे, आपको मिल जाएगा। ठीक है, समझा इतना अच्छे से? पहले बोलो। एक मिनट, हाँ, थ्रियोज हैज 2 chiral center
Fisher projection formula, OH at the lowest C3 carbon is on the right hand side, so it is D. अच्छा C2 C3 दोनों देखना है इसमें, आई एम सो सॉरी, और इसमें भी C2 C3 C4 तीनों देखना है। ये गड़बड़ हो गया बच्चा। सी व्हाट दे हैव सेड हियर, वी हैव टू सी C2 आल्सो एंड C3 आल्सो। ठीक है, तो जो लोअर OH है इट इज ऑन द राइट हैंड साइड, तो ये आपका D है, और इसमें तो सभी लेफ्ट साइड पे है, तो इट इज L। समझा? दिवेश बराबर बोल रहा था। वी हैव टू सी C2 आल्सो एंड C3 आल्सो, करेक्ट। So this is your D configuration because lower OH is on the right hand side. समझा? Correct, correct it is. And ribose में भी क्या है? तो फिर C4 इसमें कैसे lowest वाला देखेंगे? देखने का, lowest वाला देखने का। मैंने उल्टा बोल दिया, अपने को ऊपर वाला नहीं देखने का। जो लोएस्ट कार्बन रहेगा ना, सेकंड लास्ट कार्बन। अभी यहाँ पे देखो, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, तो लोएस्ट वाला कौन सा है? ये वाला। तो ये राइट हैंड साइड पे है, तो ये D। अभी इस पे ये C1 C2 C3 C4 है। ठीक है, C4 में OH किधर है? लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये L है। अभी समझा? अभी कंफ्यूजन गया क्या बच्चों? Yes, ma'am. हेलो, हाँ। What you have to see over here, you have to see the carbon from the lowest side. मैंने उल्टा बोल दिया। I have told you to see the second one, not to the second one. You have to see the carbon from the lowest side. So it is C1 C2 C3 C4 है ये, तो ये तो नहीं देख सकते। You have to see C3. C3 is on the right hand side, so it is D, that is dextrorotatory. In this case it will be 1 2 3 4. So on the fourth carbon atom, OH is on the left hand side, so it is L. अभी clear? यहाँ पे देखो ना, ये 1 और 2 ही था ना, तो C2 ही था, lowest is C2 only. तो ये right पे है तो it is D, ये left पे है तो it is L. Is it clear now? Hello? Any questions so far? Hello? अभी ये जो हम ऐसे लिखते हैं ना, this type of structure is called as Fisher projection formula. I hope you all must be knowing Fisher projection formula. अब हम जो बनाएंगे, we are going to draw over here ring like structure, और ring structure, एक मिनट, क्या लिखा है? कंपाउंड को अगर उल्टा लिखेंगे तो फर्स्ट कार्बन लास्ट हो जाएगा। यस यस, लेकिन नीचे से ही गिनने का उसको, समझा? उल्टा लिखेंगे ना अगर दिवेश, सपोज उल्टा लिखोगे तो ये CHO नीचे आएगा, ऐसा कभी होता नहीं है। CHO हमेशा ऊपर ही रहता है, तो आपको फिर भी नीचे से ही लेके D और L निकालना है। समझा दिवेश? Yes, ma'am. हाँ, ठीक है। Now we have to draw over here ring structure of glucose as well as fructose. ठीक है। Now why do we need this ring structure of glucose and fructose? First thing, there are some properties which are not shown by the open chain structure of the glucose. जैसे कि glucose में CHO group है, it is your aldehydic group, but there are so many reactions which are not giving you the proper test for aldehyde in the open chain structure. जो सेम अभी जैसे बहुत सारे टेस्ट ऐसे हैं जो नेगेटिव आ रहे हैं, और वो सारे टेस्ट ये इंडिकेट करते हैं कि ग्लूकोज में CHO ग्रुप है ही नहीं। ठीक है, बट ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। अगर मैं इसको DNP के साथ ये करूँ, याद है आपको 2,4 डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजिन, याद आ गया आपको? वो स्ट्रक्चर था हम लोगों ने बनाया था, 2,4 डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजिन, डू यू रिमेम्बर? NO2, इधर NO2 था, फिनाइल हाइड्रोजिन, एल्डिहाइड में किया था। देखो हम लोगों ने 6-7 रिएक्शन साथ वाले किए थे, जिसमें सब में से वाटर बाहर निकाला था। 2,4 डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजिन। अब ये एल्डिहाइड है, तो इट शुड गिव यू टेस्ट विद 2,4 डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजिन, but it is not giving you this test. So this reaction indicates that glucose is not having CHO group. But ऐसा है क्या? नहीं ना, glucose is having CHO group, right? So it is our responsibility to prove it. तो कैसे prove करेंगे? By using a ring structure of the glucose. ठीक है, जो ring structure बनेगा, that is called as Haworth projection formula. ठीक है, Haworth projection formula. So by using that, just to prove
और इसके साथ ही हम लोगों को ग्लूकोज के 2 एनोमर्स मिलते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ, अल्फा एनोमर एंड बीटा एनोमर, दैट आई विल टेल यू लेटर ऑन व्हेन वी विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर. So ring-like structure explains so many properties of the glucose which could not be explained by the open chain structure. That is why we need to make over here Haworth projection formula, that is a ring-like structure of the glucose. अब जो glucose बनेगा, it is made in the 6-membered ring. इसको बोलते हैं pyrin ring. ठीक है? We are going to make over here pyrin ring. तो हम लोग क्या बोलेंगे? Glucopyranose. ठीक है, पायरिन रिंग बोलते हैं इसको, 6-membered रिंग, इट इज कॉल्ड एज पायरिन, सो इट इज कॉल्ड एज ग्लूकोपायरानोज. और जो फ्रक्टोज बनेगा, ये बनेगा 5-membered रिंग में, तो इट इज कॉल्ड एज फ्यूरेनोज, उसको बोलते हैं फ्यूरन रिंग. ठीक है, इट इज कॉल्ड एज फ्यूरन रिंग, ऐसे बनाती हूँ, चलो 5-membered रिंग ऐसा, सो इट इज कॉल्ड एज फ्यूरन. तो हम क्या बोलेंगे? फ्रुक्टोफ्यूरेनोज, ग्लूकोपायरानोज. व्हाई पायरानोज? Because glucose is always given in the form of pyrin ring, so it is called as glucopyranose. Fructofuranose. Why furanose? Because we are going to use over here a furan ring. इतना समझा? वापस से यहाँ से बताती हूँ, D and L configuration से. Whenever you want to see D and L configuration, D will be on the right hand side, L will be on the left hand side. How to detect that? You have to see the lowest carbon atom. Lowest carbon atom, if OH group is on the right hand side, it will be D configuration. If from the lowest side, lowest carbon atom ka OH is on the left hand side, that time it is called as L configuration. ठीक है? Your glucose is optically active compound. It will rotate the plane polarized light to the right hand side, means to the dextro rotation. So glucose is also termed as dextrose. And what is the rotation over here? It is plus 52.7 degrees. So it is called as dextro rotation. It is optically active. Okay, all these are Fisher projection formula, but there are some properties of the glucose which could not be explained by the open chain structure. So we need to draw over here cyclic structure of the glucose. Okay, for example, 2,4 dinitrophenylhydrazine should give a positive test with the glucose because it is having aldehyde group, but we are not getting that. Even you must remember, we have done one reaction with sodium bisulfite. This test should also be positive with the glucose because glucose is containing aldehyde group, but ये test भी negative आता है. तो इससे सबको confusion हो गया कि अरे इसमें aldehyde group है या नहीं है. So in order to prove that, we need to draw over here ring structure of the glucose. ठीक है? So glucose is always written in the 6-membered ring. तो इस member को बोलते हैं pyran ring. This is called as furan ring. तो हो गया glucopyranose, fructofuranose. और ये जो हम बनाएंगे अभी स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला. अब मुझे बताओ यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है क्या? श्योर? ये मत लिखो अभी, इसका कुछ काम नहीं है. व्हेन वी विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर, ये टेस्ट नेगेटिव क्यों देता है ये डीएनपी का? वही, क्योंकि ओपन चेन स्ट्रक्चर जो हो रहा है ना, अभी देखो ये जैसे है CHO, तो मे बी इट इज नॉट गिविंग यू फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, क्योंकि ये कैसा है अभी, ये कंबाइंड फॉर्म में हो गया ना, C double bond OH. So this oxygen should be free. So in the open chain structure, it is not free. So it is not allowing your oxygen to go with that hydrogen. जैसे कि ये 2,4-DNP के हाइड्रोजन के साथ जाना चाहिए था यहाँ से, ठीक है, बट ओपन चेन स्ट्रक्चर में it is not easy to remove that. That is why it is giving you a negative test. So in order to avoid that, we have to draw the ring-like structure. Okay? Any other questions? Any doubts in this? ग्लूकोज के कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं? How many isomers are possible for glucose? 16. 16 isomers are possible. What is the angle of rotation, specific rotation of the glucose? कितना है एंगल? 52.7. प्लस बोलना, क्योंकि माइनस भी होता है, माइनस लिखोगे तो लिवो हो जाएगा. ठीक है, इट इज प्लस 52.7 डिग्री, करेक्ट. ठीक है, ओके. And glucose is also called as, since it is dextrorotatory, it is also called as dextrose. इसको और क्या बोलते हैं? ग्रेप शुगर भी बोलते हैं ग्लूकोज को, याद है ना, कल ही बताया था. ठीक है, और सुक्रोज जो है, दैट इज योर केन शुगर, सुक्रोज.
इज योर केन शुगर। दूध में होता है लैक्टोस। ये सब एमसीक्यू में पूछे हुए क्वेश्चंस है, ठीक है। ब्लड में इससे क्या रहता केन है? शुगर मतलब वो शुगर केन वाला है? हाँ, जो हम लोग गन्ने का शरबत पीते हैं ना, उसमें जो शक्कर, जो मीठापन होता है, दैट इज C12H22O11। वो आपका डायसैक्राइड है। वो डायसैक्राइड ब्रेक होता है जब हमारे बॉडी में जाता है, तो इट विल ब्रेक इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस एंड वी गेट द एनर्जी। तो हम लोग जो शक्कर खाते हैं घर पे, टेबल शुगर इज योर सुक्रोज, क्योंकि वो गन्ने के शरबत से मिलता है। अंडरस्टूड? सो इट इज केन शुगर यस इज मिस। टेबल शुगर, जो हम लोग खाते हैं। समझा? ब्लड में कौन सा शुगर होता है? इफ दे विल आस्क यू व्हिच शुगर इज प्रेजेंट इन द ब्लड, फ्रूट्स में, यस, फ्रुक्टोज इज प्रेजेंट इन द फ्रूट्स, एब्सोल्युटली करेक्ट दिवेश। ब्लड में कौन सा शुगर होता है जिसकी वजह से डायबिटीज हो जाता है बहुत ज्यादा? इट इज ग्लूकोज। हाँ, बराबर बोला मेनरी, इट इज ग्लूकोज, इट इज प्रेजेंट इन द ब्लड ऑल्सो। हनी में कौन सा होता है? हनी इज ऑल्सो कंटेनिंग ग्लूकोज। कभी हनी का बॉटल लेना और पीछे देखना, दे विल राइट दिस मच अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट, सो इट इज कंटेनिंग ग्लूकोज। अंडरस्टूड? वहां पे लिखा रहेगा, उसका रोटेशन भी लिखा रहता है। डाबर हनी या फिर वो दूसरा हनी आता है ना, यू कैन चेक इट, इट इज रिटन ओवर देयर, इट इज कंटेनिंग ग्लूकोज। ठीक है, फ्रूट्स में होता है ग्लूकोज। फ्रुक्टोज इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द फ्रूट्स। मिस तो फिर ठीक ये है। सब में से अगर हम लाइट हम्म। पास करेंगे तो मिस वो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा ना उसका? हाँ, सब लोग नहीं होंगे, कुछ कुछ ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकते हैं। अभी जैसे सुक्रोज है, तो सुक्रोज इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो अभी जैसे मैंने ये रोटेशन लिया, ठीक है, ये मेरा प्लेन पोलराइज लाइट था। मतलब क्या है कि जितनी भी लाइट थी सबको एक जगह रख दिया। प्लेन पोलराइज करना मतलब क्या? जहां से अलग अलग जगह से लाइट आ रही थी। अभी देखो, जो आपकी ऑर्डिनरी लाइट होती है वो ऐसे होती है, किधर पे भी जाती है ना, इट इज स्कैटर्ड इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन। बट आपकी जो प्लेन पोलराइज लाइट होती है, इट इज ऑलवेज इन वन डायरेक्शन। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको सबको एक जगह जमा करते हैं। नाउ आई विल टेक हियर सुक्रोज, सपोज आई विल टेक हियर सुक्रोज, और इसको अगर मैंने पास किया ना लाइट को, तो ये रोटेट ही नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। तो दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। बट ग्लूकोज इज ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि वो उसको रोटेट कर देता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कुछ कंपाउंड होंगे जो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दोनों दिखाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। याद है, पढ़ा होगा आपने, रेसिमिक मिक्सचर, which is having 50% rotation of clockwise, that is dextro, and 50% levo, so that is called as racemic mixture. So उस केस में हम लोग ऐसे लिखते हैं, DL कॉन्फ़िगरेशन पूरा लिखते हैं, या फिर प्लस माइनस लिखते हैं। समझा? HDA में पढ़ा होगा, आया समझ में? So not necessary, so it depends upon whether it is rotating or not. Depending upon that you have to decide whether it is optically active or inactive. तो उसको टेस्ट करने का एक ही क्राइटेरिया है, प्लेन पोलराइज लाइट को उसके सोल्यूशन से पास करो, अगर वो घूमती है लाइट तो एक्टिव है, और कुछ नहीं होता है तो इट इज इनएक्टिव। समझा? यस मिस। यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन नहीं है? एकदम अच्छे से समझ में आ गया? क्योंकि अभी मैं आपको रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाना सिखा रही हूँ। अच्छा, मुझे बताओ, ग्लूकोज इज ऑलवेज मेड इन विच फॉर्म ऑफ रिंग? पायरन। फ्रुक्टोज को किससे बनाएंगे? फ्यूरन में। तो ग्लूकोज को क्या बोला जाता है? ग्लूकोपाइरानोज। फ्रुक्टोज को क्या बोला जाता है? फ्रुक्टोफ्यूरानोज। ठीक है। नाउ आई विल टीच यू हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ रिंग लाइक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि जो ये है ना, इट इम्पार्ट्स द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी टू द ग्लूकोज। तो आपका इट विल रिएक्ट विद द फेलिंग सोल्यूशन। क्यों एक्ट कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा? क्योंकि ग्लूकोज के अंदर CHO ग्रुप है ना, तो हमने पढ़ा था ना, एल्डिहाइड विल रिड्यूस फेलिंग सोल्यूशन। और क्या था? टोलेंस रिएजेंट, शिफ्ट्स बेस। तो ग्लूकोज इज आल्सो एक्टिंग एज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, चलो अभी हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। मैं आपको थोड़ा इजी मेथड से बताऊंगी, आपकी बुक में ना थोड़ा सा ऐसे ये करके बताया है। रुको जरा, मुझे देखने दो एक मिनट, कहाँ गया? चलो ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रॉ ओवर हियर फिशर प्रोजेक्शन। अभी कुछ लिखो मत, जस्ट पे अटेंशन। रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ये एग्जाम में आता है।
सबसे पहले यू विल ड्रॉ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. 1 2 3 4 CHO CH2OH. याद हुआ कि नहीं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर? OH H OH OH. फिर यहाँ पे H H OH H. ये कौन सा फॉर्मूला है जल्दी बताओ. ऐसे जो ड्रॉ करते हैं क्या बोलते हैं इसको? फिशर फिशर्स प्रोजेक्शन. प्रोजेक्शन फॉर्मूला. ठीक है, ये भी एचडीए में पढ़ा होगा. जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इट इज अवे फ्रॉम यू, जो वर्टिकल लाइन होती है इट इज टुवर्ड्स यू. ठीक है, इट इज कॉल्ड एज फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला. अभी मुझे बनाना है पायरन रिंग, तो मैं कैसे करूंगी? ऐसा ड्रॉ किया मैंने. पायरन रिंग मतलब 6 मेंबर्ड रिंग. जब आप ड्रॉ करोगे तो 2 नीचे और 2 ऊपर ऐसे लेना है. 6 मेंबर्ड रिंग. ठीक है, अब देखो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6. ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा कार्बन नंबर 1, दैट इज CH डबल बॉन्ड O. ये हो गया कार्बन नंबर 1. ये आ गया एल्डिहाइडिक ग्रुप. इतना क्लियर? अब हर एक के जंक्शन पे यू आर गोइंग टू ड्रॉ वन लाइन. अब क्या करना है बच्चों? सेकेंड कार्बन का जो लेफ्ट साइड पे है वो लिखेंगे ऊपर, जो राइट साइड पे है वो लिखेंगे नीचे. देखो H ऊपर गया, OH नीचे आ गया, OH ऊपर गया, H नीचे आ गया. वापस से H will go up, OH will come down. Again H will go up, OH will come down. सॉरी यहाँ पे O नहीं आएगा डायरेक्टली. यहाँ पे क्या लिखेंगे? अभी छठा कार्बन आ जाएगा. दिस इज CH2OH. दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 3 4 5 6. ये समझा क्या? पहले इतना बोलो. वॉट एवर आई डिड. क्लियर? CHO इधर लिख दिया, C डबल बॉन्ड O. फिर ये सब कार्बन बना दिया. जो लेफ्ट हैंड साइड है सब ऊपर जाएगा, H OH H H. जो राइट हैंड साइड था सब नीचे जाएगा, OH H OH OH. क्लियर? यस और नो बच्चों? यस मिस. अभी आपके बुक में दिया नहीं है ये सब, इसके लिए मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है. अभी मैं ये नीचे बनाती हूँ ताकि आपको इजी पड़े. ये पूरा ग्रुप इधर से इधर शिफ्ट करेंगे, H इधर नीचे आएगा और ये OH को इधर शिफ्ट करेंगे. ठीक है, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट ट्रांसफरिंग माय कंपाउंड्स, माय ग्रुप्स. ये ग्रुप इधर आएगा, H नीचे आएगा, OH इधर जाएगा. सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर नाउ? जस्ट सी. 2 नीचे और ऐसे लेके बड़ा सा बनाना ताकि गड़बड़ नहीं हो. It will remain as it is, CH डबल बॉन्ड O. 1 2 3 4. क्या किया मैंने? OH को इधर शिफ्ट किया, चलो OH इधर आ गया. CH2OH को इधर शिफ्ट किया, चलो इधर आ गया. बाद में H को नीचे शिफ्ट किया, इधर आ गया. बाकी तो सेम रहने वाला है, H OH OH H H OH. समझा? कितना समझा? क्या बोलो? यस मैम. अब क्या होगा पता है क्या? ये जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन है ये इधर से इधर शिफ्ट होता है और ये ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है अपने पास. तो इस तरह से ना हमारे पास 2 स्ट्रक्चर आएंगे. ये रिंग बंद हो जाएगा कि नहीं बोलो? ये H जो है इसके पास आ गया, नीचे OH हो जाएगा, ऊपर H हो जाएगा, रिंग बंद हो जाएगा. अभी देखो कैसे बनता है रिंग. इधर ऑक्सीजन हो गया, रिंग क्लोज हो गया. देखो हाँ बच्चों क्या बता रही हूँ. H इसके पास आ गया तो नीचे OH हो गया, ये H ऑलरेडी था, इधर गया. ये मेरा फर्स्ट कार्बन है, कार्बन नंबर 1. और इधर ऑक्सीजन बना था तो ये रिंग बंद हो गई कि नहीं? रिंग क्लोज हो गई. ये हो गया ऐसा स्ट्रक्चर, H OH OH H H OH CH2OH H. ठीक है, एक स्ट्रक्चर ऐसा पॉसिबल है. दूसरा आप मुझे बताना कि व्हाट इज द डिफरेंस. दिस टाइम आई विल राइट डाउन OH ऑन द अपर साइड, H बाकी सब सेम रहेगा. ठीक है, दिस इज ऑल्सो कार्बन नंबर 1. फिर H OH OH
H, H, OH, CH2OH, H. क्या डिफरेंस दिख रहा है? At the carbon number 1, you can see the flipping of that. तो जब आपका OH नीचे की तरफ होता है, it is called as alpha D glucopyranose. ठीक है? और जब आपका OH ऊपर की तरफ होता है तो it is called as beta D glucopyranose. समझा? ये जो अल्फा और बीटा है, शी बाबा ये पेज बहुत उड़ता है. अल्फा एंड बीटा आर कॉल्ड एज एनोमर्स ऑफ ईच अदर. और ये एनोमर्स आप ओपन चेन स्ट्रक्चर में देख सकते थे क्या? अल्फा कौन सा है, बीटा कौन सा है? नहीं देख सकते थे, है ना? ये कौन बताता है एनोमर्स है ग्लूकोज के? इट इज शोन ओनली बाय द रिंग लाइक स्ट्रक्चर. दीज आर कॉल्ड एज एनोमर्स. और कौन से कार्बन पे एनोमर्स बन रहा है? कार्बन नंबर 1 पे ना, C1. सो इट इज कॉल्ड एज एनोमेरिक कार्बन. क्लियर हो गया ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर? ये स्ट्रक्चर एग्जाम में आता है. ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज. पायरन रिंग क्या बोला था? पायरन रिंग मतलब 6 मेंबर्ड रिंग. रुको, किसी ने कुछ तो क्वेश्चन डाला है. हाँ मैं पूरा वापस से बताऊंगी, डोंट वरी. See what I said now. We have to draw over here a ring like structure. पायरन रिंग बनाने वाले हैं. तो मैंने शुरू कर दिया यहाँ से. कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है, लिख दिया. लाइंस ड्रॉ करनी है. जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ऊपर जाएगा, राइट हैंड साइड नीचे जाएगा. तो HOH हो गया. HOH, OH, OH ऊपर गया, H नीचे. HOH, H ऊपर गया, OH नीचे. HOH, HOH हो गया और ये हो गया. ये ग्रुप को शिफ्ट करो. ये पूरा ग्रुप इधर आएगा, H नीचे जाएगा, OH इधर जाएगा. ठीक है, शिफ्टिंग हो गया. अब क्या करेंगे? दिस हाइड्रोजन विल बी अब्स्ट्रैक्ट बाय द ऑक्सीजन. चलो ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन को अपने तरफ ले लिया, नीचे आ गया. ये कार्बन था, कार्बन नंबर 1 ऐसे ही रखा. और ये यहाँ से है ना, लोन पेयर रहता है ऑक्सीजन के पास, तो ये रिंग को बंद कर लेता है. मेरी रिंग बंद हो गई. ठीक है, H विल गो अप, OH विल गो डाउन. बाकी सब कुछ सेम है. दिस इज कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो मिस So वो when ओ उधर ही OH is रहेगा on, ना? हाँ हाँ वो इधर ही रहेगा. So when your OH is at the lower side, it is called as alpha D glucopyranose. वैसे भी अल्फा D क्यों आया देखो ना, नीचे से 5वां कार्बन C5, OH is on the right hand side, तो D रहेगा कि नहीं? है कि नहीं, बोलो जल्दी. यस मिस. D हो गया. तो अल्फा, अल्फा क्यों बताया? क्योंकि OH is at the lower side. और जब आप इसको फ्लिप करते हो तो ये हो गया बीटा. तो ये जो अल्फा एंड बीटा है, दे आर कॉल्ड एज एनोमर्स ऑफ ईच अदर. और कौन से कार्बन पे वो एनोमर बना रहा है? कभी कभार कार्बन नंबर 2 पे बनाता है कोई दूसरा कंपाउंड, कोई तीसरा कंपाउंड कार्बन नंबर 3 पे बनाता है. तो जिस कार्बन पे उसका फ्लिपिंग होता है, दैट कार्बन इज कॉल्ड एज एनोमेरिक कार्बन. तो यहाँ पे कौन से कार्बन पे फ्लिपिंग हुआ है? कार्बन नंबर 1 पे. सो इट इज कॉल्ड एज एनोमेरिक कार्बन. पक्का समझ आ गया सबको अच्छे से? एकदम आराम मिस तो से करना OH है नीचे कोई. होगा तो फिर अल्फा होता है. हाँ OH किधर पे भी नीचे होगा ना, अगर ये इस पे, तो इट इज अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज. अब पायरानोज क्यों, देखो ना पायरन रिंग बोला था ना, ऐसे बनाएगा. 6 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग है. 1 2 3 4 5 और ये बीच में आएगा ना, आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है ये. हेट्रो एटम बोलते हैं इसको. ऑक्सीजन आ गया बीच में, सो इट इज 6 मेंबर रिंग. इट इज ऑल्सो 6 मेंबर रिंग. OH ऊपर गया तो इट इज बीटा. कैसे याद रखने का? OH ऊपर की तरफ बैठा है ना तो बीटा हो गया. OH नीचे की तरफ है तो इट इज अल्फा. समझ आया सबको साइक्लिक? ये आपके बुक में ये सब स्टेप्स नहीं दिए हुए हैं, ये स्टेप नहीं दिया हुआ है. डायरेक्टली उन लोगों ने ये दोनों स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया. अब मैं भी अगर डायरेक्टली ड्रॉ करती तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता. समझा? अब अगर ये दोनों स्ट्रक्चर को मैं ट्रीट करती हूँ 2,4 डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ, मुझे फटाफट पॉजिटिव टेस्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ से सब ग्रुप्स फ्री हैं रिएक्शन करने के लिए. समझा? दैट इज व्हाई दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर. किसी को कुछ डाउट है? मिस तो ये दोनों समझ आ दोनों ही गया? स्टेबल है. यस यस, दोनों स्ट्रक्चर स्टेबल है. दोनों का अपना अपना प्रॉपर रोटेशन है. देखो शायद दिया भी रहेगा रोटेशन, इसका बुक में दिया है कि नहीं पता नहीं. नहीं रोटेशन नहीं दिया हुआ है.
फ्रुक्टोज का दिया हुआ है, इसका नहीं दिया। फ्रुक्टोज का रोटेशन दिया हुआ है लिवोल्यूज। फ्रुक्टोज इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिवियोलोज क्योंकि वो लिवो रोटेशन दिखाता है। वो मैं बाद में बताती हूँ, पहले ये समझा क्या बोलो। ग्लूकोज का समझा, साइक्लिक स्ट्रक्चर। ये फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला था और इसको बोलते हैं हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला था? हॉवर्थ फॉर्मूला। समझा? गिव मी अ क्विक yes or no into the chat box. Is it clear everybody? हेलो, हाँ सबको समझ आ गया? प्लीज रिप्लाई, नहीं समझा तो वापस पूछो, इट इज फाइन, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, डोंट वरी। यस ठीक है, चलो अभी लिखो, पहले धीरे धीरे लिखो। पहले क्या लिखा हुआ है, पहले ये ड्रॉ करो, फिर ये ड्रॉ करो, चाहिए तो कहीं साइड में लिख के रखो। लेफ्ट वाला जो होता है फिशर प्रोजेक्शन का, हॉवर्थ में ऊपर की तरफ जाता है, राइट वाला नीचे की तरफ जाता है। मेक योर ओन नोट्स अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। जो पॉइंट्स आपको खुद से लिखने हैं यू कैन राइट। पहले ये ड्रॉ करो, फिर फ्लिपिंग हो जाएगा। फ्लिपिंग वाला ये स्ट्रक्चर है, मैंने बताया। ये होने के बाद नीचे करती हूँ कैमरा, ठीक है? लिख लो, अच्छे से ड्रॉ करो। ये आता है एग्जाम में, 4 मार्क्स के लिए आया था एक बार। एक बार क्या, बहुत ही बार आता है। ड्रॉ द एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज, अल्फा और बीटा। तो डायरेक्टली नीचे के 2 स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने का। सपोज इनकेस भूल गए, कह रहे भाई क्या था स्ट्रक्चर, अभी ये तो याद रखने वाली चीज नहीं है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि हाउ दिस स्ट्रक्चर हैज कम। आपकी बुक में डायरेक्ट स्ट्रक्चर्स दे दिया है। हो जाएगा तो बोलो, आई विल मेक इट एट द लोअर साइड। मैम कर दो। क्या हुआ? नीचे वाला दिखा। ऊपर का हो गया स्ट्रक्चर सब। अच्छे से ड्रॉ करो। हाँ देखो ये कैसे किया है, नहीं तो पूरा खिचड़ी बन जाएगा अंदर। इधर से 2 लाइन, नीचे से 2 लाइन, इधर से 2 लाइन नीचे, तो पूरा अंदर है ना सब मिक्स हो जाएगा। ये भी लिखना, कार्बन नंबर 1 इज कॉल्ड एज एनोमेरिक कार्बन, अल्फा एंड बीटा आर कॉल्ड एज एनोमर्स ऑफ ईच अदर। आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग दिस चैप्टर। ये सब कभी पता भी नहीं होगा ना कि अरे ऐसे भी कुछ होता है। हम लोग जो शुगर खाते हैं वो सुक्रोज है। जो हम लोग बचपन से फॉर्मूला लिखते आ रहे हैं, C12H22O11। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा एनर्जी देता है हमारे बॉडी को। बायोलॉजी वाले उनको तो ज्यादा अच्छे से पता होगा।
इसके बाद है ना फ्रुक्टोज का भी बता देती हूँ, फिर डाइसैकेराइड वो सब हम लोग कल करेंगे, आज नहीं होएगा उतना। फ्रुक्टोज तक हो जाएगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिंग स्ट्रक्चर और साइक्लिक स्ट्रक्चर, कंफ्यूज मत हो जाना। और चाहिए तो पेंसिल से ना कार्बन के नंबर्स डाल के रखना, तो कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको पता चलेगा कि कौन सा कार्बन किधर गया है। और आगे जो डाइसैकेराइड्स ट्राइसैकेराइड्स है ना, वो सब इसके ऊपर ही है। मैम जो सेकंड स्ट्रक्चर है वो लीवर पेज और नंबर है इसका 304 एंड 303। हाँ बोलो ना, क्या हुआ? जो सेकंड राइट हैंड साइड में जो स्ट्रक्चर है ना, ये उसका नाम क्या है? बीटा लीवो आएगा बीटा ना? डी ग्लूकोपाइरानोज, लीवो नहीं आएगा। आपका जो ग्लूकोज है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी ही है, तो उसको लीवो नहीं लिखना है। ये इसका अच्छा। ही बनाया ना, डेक्स्ट्रो वाले का ही हम लोगों ने रिंग स्ट्रक्चर बनाया ना। ये देखो नीचे से हाँ मैम, हाँ। डी है, तो इसका ही हम लोगों ने रिंग बनाया। तो ये आपका जो ग्लूकोज है वो इनबॉर्न डेक्स्ट्रोज है, तो उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी ही बोलते हैं, तो डी आएगा। दिवेश पेज नंबर 303 एंड 304 टेक्स्ट बुक में है। और लोगों ने ये सब नहीं लिखा है, डायरेक्टली ये लिखा है, ये स्ट्रक्चर भी नहीं दिया है, डायरेक्टली ऐसे फ्यूरन रिंग बनाया और नीचे ये दो स्ट्रक्चर दे दिया। पर ऐसे रटोगे तो याद नहीं होगा, ये समझाना अच्छे से, अगर तुम लोग भूल भी गए तो यहाँ से फटाफट करके आंसर निकाल सकते हो। once you're done let me know। कैसा लगा चैप्टर? अच्छा है ना, बोरिंग तो नहीं लगा? डन, ओके प्रियंका। finished everyone? any questions, any doubts, मिस लास्ट any confusion? हाँ लिख लो लिख लो। Ma'am, what is the name of the last one? लास्ट Beta D बीटा glucose. डी ग्लूकोपाइरानोज, सेम है, सेम स्पेलिंग है। अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज, बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज, IRANOSE, सेम ही है। खाली इधर अल्फा इधर बीटा है, बाकी सब सेम है। और बीच में डैश डालना, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज, आप प्लस भी लिख सकते हो बीच में। और ये एनोमर्स है एक दूसरे के, दे आर कॉल्ड एज एनोमर्स। Which carbon is called as anomeric carbon? Carbon number 1 is called as anomeric carbon. मिस ये एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज ना? Yes, these two are called as anomers of glucose, which could not be explained on the basis of open chain structure. है ना, तो इसका एडवांटेज कि अल्फा बीटा हम लोगों को साइक्लिक स्ट्रक्चर से पता चला कि हाँ बाबा इसके एनोमर्स भी है, which could not, इससे थोड़ी पता चलेगा कौन सा अल्फा है कौन सा बीटा है। डन। कार्बन नंबर 1 इज कॉल्ड एज एनोमेरिक कार्बन, वो भी लिखो। Finished. Say yes
और नो एटलीस्ट, कुछ बोलते भी नहीं है। हेलो। यस मैम। चलो अभी नेक्स्ट जाएंगे हम लोग। अभी हम पढ़ेंगे फ्रुक्टोज के बारे में। ओके ओके हेली, चलो। अभी फ्रुक्टोज आपको पता होगा फ्रूट्स में होता है, ऑलमोस्ट सभी फ्रूट्स में फ्रुक्टोज होता है, ठीक है। सो what is the formula for fructose? First of all, fructose is also having a general formula C6H12O6, बट ये ये क्या था अपना, ग्लूकोज क्या था, एल्डोहेक्सोज था। ये क्या है, कीटोहेक्सोज है, बराबर, बिकॉज इट इज हैविंग 6 कार्बन एटम्स विथ 1 एल्डिहाइडिक ग्रुप। अभी जो फ्रुक्टोज होता है ना, वो आपका हमेशा लीवो रोटेटरी होता है, दैट इज वाई फ्रुक्टोज इज ऑल्सो कॉल्ड एज लीव्यूलोज। याद रखो, फ्रुक्टोज इज ऑल्सो कॉल्ड एज लीव्यूलोज। और इसका रोटेशन कितना होता है, रोटेशन इज रिटन एज अल्फा D20, दैट इज -92.4 डिग्री। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हुआ कि नहीं हुआ, दिस इज ऑल्सो ऑप्टिकली एक्टिव, पर ये यस आपका मिस। जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसको ऐसा घुमाएगा। इसमें ग्लूकोज में कैसे घुमाना था, 52 पे घुमाया, फ्रक्टोज में कैसे घुमाएगा, उल्टा घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो कितना हो गया, -92.4 डिग्री। इट इज ऑल्सो अ रिड्यूसिंग शुगर, बिकॉज इसके अंदर कीटोन है, तो इट विल रिड्यूस योर कीटो, इट विल रिड्यूस द फेलिंग सोल्यूशन, टोलेंस रिएजेंट एंड शिफ्स बेस। अब हम जब इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे होएगा देखो। अभी तो सबसे पहले हम लोग ओपन चेन स्ट्रक्चर लिखते हैं। आई विल राइट डाउन हियर cyclic structure of fructose। फ्यूरन रिंग लेंगे, जस्ट पे अटेंशन फर्स्ट ऑफ ऑल। यहाँ ऊपर आता है CH2OH 1 2 3 4, ये भी नीचे भी आता है CH2OH, ओ सॉरी इधर नहीं आएगा, डबल बॉन्ड O, OH H OH OH H H OH, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हम लोग को क्या बनाना है, इसका फ्यूरन रिंग। ठीक है, तो मैं क्या लिखूं, इधर पहला कार्बन इधर आएगा ना, CH2OH, कार्बन नंबर 1 है इधर। एक मिनट ना, डबल बॉन्ड किधर गया, एक मिनट रुको, एक सेकेंड ना। कैसा आएगा ये स्ट्रक्चर, 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O। कुछ तो गड़बड़ हो गया यार, किधर गया इसका कार्बन, जस्ट गिव मी अ सेकेंड ना बच्चों प्लीज। By that time you can please revise your textbook. Let me just check ये कैसे आता है। This is कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 इधर आना चाहिए, मतलब ये ऐसा आना चाहिए, 1 2 3 4, CH2OH, इधर लिखा तो अच्छा, CH2OH and C डबल बॉन्ड O, पहला कार्बन, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, तो अगर यहाँ पे थर्ड वाला OH H
यहाँ पे HOH और ये आ जाएगा तो CH2OH। तो इसको हम लोग अभी शिफ्ट करेंगे, ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा बराबर। कार्बन नंबर 1 2, हाँ चलो ठीक है, आ गया। चलो अब ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसका देखो, 1 2 3 4 इधर गए। अभी ये मेरा हो गया CH2OH और मैंने यहाँ पे लिखा C डबल बॉन्ड O। दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, दिस इज 3 4 5। अभी देखो 3 वाला इधर आया कि नहीं, 1 2 3 4 5। अभी 3 है ये वाला, लेफ्ट वाला ऊपर जाएगा, राइट वाला नीचे आएगा, लेफ्ट वाला ऊपर, राइट वाला नीचे, ऊपर नीचे। एंड दिस इज CH2OH, दिस इज कार्बन नंबर 6। क्लियर? इतना समझा? नाउ डू द शिफ्टिंग। व्हेन यू विल डू द शिफ्टिंग कैसे हो जाएगा पता है? दिस ग्रुप, दिस होल ग्रुप will shift here, H will come here, OH will go here। तो ये स्ट्रक्चर हो गया ऐसा, देखो C डबल बॉन्ड ओ सॉरी CH2OH और नीचे हो गया C डबल बॉन्ड O, इधर आ जाएगा OH HOH, इधर पे क्या आ जाएगा बोलो, CH2OH, नीचे क्या आ गया H, यहाँ पे क्या हो जाएगा OH। समझा बच्चों? ठीक है। अब क्या होगा पता है, इसके पास लोन पेयर है ना, तो ये क्या करेगा, यहाँ से चेन बंद कर देगा और ये H को कौन अब्स्ट्रैक्ट करेगा, ऑक्सीजन अब्स्ट्रैक्ट करेगा। समझा कि नहीं समझा? पहले इतना बोलो। फिर ये यस अपने को मिस। ऐसे दो स्ट्रक्चर देगा। समझा? ये H इसके पास चला गया तो मेरा स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, बेसिकली चेन क्लोज कर देंगे हम लोग। तो ये हो गया मेरा CH2OH ऊपर की तरफ था और ये हो जाएगा OH। फिर तो सेम रहने वाला है, OH H, फिर ये HOH और ये हो जाएगा CH2OH और ये हो गया H। देखो OH नीचे है तो अल्फा है कि बीटा है, जल्दी बोलो। OH नीचे है तो वो अल्फा है या बीटा है? अल्फा। अल्फा। अल्फा, करेक्ट। बाकी ये अल्फा। सब सेम रहेगा और यहाँ पे ये OH ऊपर है तो इट इज बीटा। बताओ कौन से कार्बन पे वो फ्लिप हुआ? कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 है ना, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, तो कार्बन नंबर 2 इज माय एनोमेरिक कार्बन। अभी समझा? ये समझा क्या बच्चों स्ट्रक्चर अच्छे से? एक्चुअली इधर एक और सी नहीं बनाना चाहिए था, ये कैसा था, सी, हाँ बराबर है ना, बराबर किया, बराबर है। 1 2 3 4 5 6, हाँ बराबर है। समझा? अंडरस्टूड? दिस टू आर ऑल्सो। अभी इसका नाम कैसे लिखेंगे, मैं एक काम करती हूँ, दूसरे पेज पे और अच्छे से लिखती हूँ, बहुत गड़बड़ हो गया ना इधर। वेट, आई विल ड्रॉ इट वंस अगेन, फिर तुम लोग ड्रॉ करो। देखो कैसा था स्ट्रक्चर, CH2OH डबल बॉन्ड O, 1 2 3, OH H OH OH H H OH CH2OH। इसका हम लोग बनाएंगे 5 मेंबर्ड रिंग। तो इट विल गो लाइक दिस। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग CH2OH और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O। So this is carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3, carbon number 4, carbon number 5। तो 3 क्या हो जाएगा, OH will go up। This is 1 2 3 4 5 6। सिर्फ देखो, हाँ बाद में लिखो, अभी कुछ लिखो मत, में तो कुछ समझेगा नहीं। OH ऊपर गया, H नीचे आया, H ऊपर गया, OH नीचे आया, H ऊपर गया, OH नीचे आ गया, फिर ये हो गया CH2OH कार्बन नंबर 6। नो शिफ्ट, ये इधर गया, H नीचे आया, OH इधर ऊपर गया, तो स्ट्रक्चर कैसे हो गया अभी ऐसा। ठीक है, CH2OH
C डबल बॉन्ड O, ठीक है, OH H H OH, इधर क्या हो जाएगा अभी, CH2OH, नीचे आ गया H और यहाँ पे आ गया OH। तो ये लोन पेयर था। ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को अपने पास ले लेगा और ये यहाँ से रिंग बंद कर देगा, ठीक है। तो मेरा दो स्ट्रक्चर आएगा ऐसे, क्लोज चेन स्ट्रक्चर लाइक दिस। तो ये हो जाएगा CH2OH, OH आ गया नीचे के साइड, फिर हो जाएगा OH H H OH, हो जाएगा CH2OH H। इसका नाम क्या है, अल्फा डी फ्रुक्टो फ्यूरानोज, क्योंकि OH नीचे है। और दूसरा स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस, this time OH will be on the upper side and अरे यार, and then CH2OH, बाकी सब सेम रहने वाला है, ठीक है। it will be CH2OH H HOH OH H। फ्यूरानोज का मतलब है फ्यूरन रिंग, ये रहा फ्यूरन रिंग बनाया ना हम लोगों ने, 5 मेंबर्ड रिंग। पायरानोज मतलब 6 मेंबर्ड रिंग, फ्यूरानोज मतलब 6, पायरानोज मतलब 6 मेंबर्ड रिंग, फ्यूरानोज मतलब 5 मेंबर्ड रिंग। तो इसका नाम आ जाएगा अल्फा, सॉरी, बीटा डी फ्रुक्टो फ्यूरानोज। पूरा साथ में लिखना है, जगह नहीं था, ये दोनों एक दूसरे के एनोमर्स हैं। एंड एट व्हाट कार्बन इट इज एनोमर्स, एट द कार्बन नंबर 2। तो C2 इज कॉल्ड एज एनोमेरिक कार्बन। समझा अभी? अभी समझा क्या नहीं, इतना बोलो पहले। हैव यू अंडरस्टूड दिस यस मैम। एवरीबॉडी? चलो अभी इसको लिख लो, और कुछ डाउट होगा तो मुझे पूछो, रुको है बहुत पेज सब फालतू में उड़ते रहते हैं। कॉपी करो पहले इतना, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज, और उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करो। अंडरस्टूड ना बच्चों? ये अल्फा और ये बीटा, पहले इतना ड्रॉ करो, पहले फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। अरे वो लिखा क्या पीछे वाला पेज, उसका एंगल ऑफ रोटेशन और वो सब? नो मैम। नहीं लिखा? हाँ रुको रुको, पहले वो लिखो। पहले ये लिखो फ्रुक्टोज का इंट्रोडक्शन, 1 2 3 4 5। Formula, it is levorotatory, so it is also called as levulose, or angle of rotation is minus 92.4 degree. It is also a reducing sugar. सब आपके MCQs के क्वेश्चंस हैं। हो गया बच्चों? This page is done. हाँ, अभी तुम लोग मेरे साथ ही ड्रॉ करो, और थोड़ा और प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करती हूँ उसको मैं। सब लोग मेरे साथ ही ड्रॉ करो, ताकि ये 12 बजने तक आपका हो जाए ड्रॉ करके। मेरे साथ ही ड्रॉ करो। चलो पहले फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर निकालो, CH2OH डबल बॉन्ड O, 1 2 3, OH H OH OH, CH2OH H H OH, 1 2 3 4 5 6। इतना हुआ ड्रॉ करके? मेरे साथ ड्रॉ करो सब लोग।
हुआ। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। चलो अभी ऐसे 3 लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर ये 2 लाइन नीचे और 2 लाइन नीचे, ऐसे बोर्ड जैसा बनाओ। तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O एंड CH2OH, ज्यादा इजी है। ठीक है, दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, ये आ जाएगा कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। तो ऊपर जाएगा OH। मिस आपका आवाज नहीं आ रहा। H, हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? OH, यस मैम। H, H, OH, H, OH, और कार्बन नंबर 6 इधर आ जाएगा CH2OH, दिस इज कार्बन नंबर 6। इतना ड्रॉ करो। मैम पता कैसे हाँ, चलेगा कि एच अंदर जाएगा OH बाहर आएगा? ये क्या देखो ना, OH जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है वो सब ऊपर की तरफ लिखने का, और जो राइट हैंड साइड वाला है वो सब अच्छा। नीचे की तरफ लिखने का। कभी से तो मैं बोल रही हूँ ये, आपने ध्यान नहीं दिया क्या? हाँ ग्लूकोज के टाइम पे भी बोला था, जो ऊपर रहता है ना लेफ्ट मैम, हैंड मेरा साइड पे, वो कनेक्शन सब थोड़ा ऊपर ब्रेक लिखने है। का। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है वो ऊपर की तरफ लिखने का, राइट हैंड साइड वाला सब नीचे की तरफ लिखने का। हो गया इतना? अब मेरे इसमें जगह नहीं है तो मैं ऐसे लिख रही हूँ, तो ये शिफ्ट करेंगे अभी। ये ग्रुप इधर गया, H को इधर लेके आओ, OH को इधर लेके जाओ। चलो ड्रॉ करो फटाक से। 2 लाइन नीचे, 2 लाइन ऊपर, फिर ऐसा ऐसा। C डबल बॉन्ड O, ये हो गया CH2OH, ऐसे ही रहेगा। दिस विल बी OH, H एकदम सेम, H, OH, यहाँ पे सब उल्टा हो जाएगा। OH इधर चला गया, OH विद द लोन पेयर्स। यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2OH। ये जो बॉन्ड है कार्बन के लिए है, इसलिए मैं इसको ऐसा लिखती हूँ, और नीचे आ जाएगा H। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीजन है ये एक शिफ्ट करेगा, और ये जाके इस हाइड्रोजन को अपने पास ले लेगा, और ये जो ऑक्सीजन है इसको रिंग बंद कर देगा। समझा? अभी अच्छे से समझ में आया होगा। तो इधर से रिंग बंद कर दो अभी। रिंग बंद हो गई। 2 लाइन नीचे, 2 लाइन ऊपर, जैसे आपको ठीक लगे ऐसे ड्रॉ करो। मेरा तो टेढ़ा ही हो गया अभी। तो ये हो गया CH2OH, OH इज डाउन। बाकी ये सब ड्रॉ करो। OH, H, H, OH, CH2OH, H, और दूसरा स्ट्रक्चर भी एग्जैक्टली सेम आएगा। आई होप अभी समझ आ गया अच्छे से। 3 बार बताया मैंने वो, OH, CH2OH, ये सब सेम रखेगा। तो ये हो गया आपका अल्फा डी फ्रुक्टो फ्यूरनोज, क्योंकि फ्यूरन रिंग बनाया था। फ्यूरन रिंग है, ऐसा था, 5 मेंबर्ड रिंग। और ये हो गया बीटा डी फ्रुक्टो फ्यूरनोज। ठीक है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के एनोमर्स। कौन से कार्बन पे एनोमर्स है बच्चों? 1 2। तो कार्बन नंबर 2 इज कॉल्ड एज एनोमेरिक कार्बन एटम। कार्बन एटम क्लियर? I hope there is no confusion now. Haworth projection formula for this. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे डाइसैकराइड्स, वो सब। वो पहले वाले में मैंने ऐसे लिख दिया था, ऐसा 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 था, फिर CH2OH और नीचे C डबल बॉन्ड O लिखा था ना, तो ये वाला ज्यादा अच्छा है, तो ऐसा वाला मत लिखो। Any questions? Please give me a quick reply. Any questions in this? मैम ये डी तो डेक्स्ट्रो रिप्रेजेंट करेगा ना, हाँ, लेकिन ये तो लीवो है ना। नहीं, यहाँ पे जो स्टेबल कंडीशन है दैट विल बी डेक्सट्रोज ओनली। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे डेक्सट्रोज वाला ही ड्रॉ करते हैं, ओके। फ्रुक्टोज में भी। समझा? लिवो तो है, वो लिवो रोटेशन दिखाता है, बट इट इज नॉट स्टेबल इन द लिवो रोटेशन, सो वी हैव टू राइट डाउन हियर डेक्सट्रोज ओनली। और देखो ना यहाँ पे नीचे हम लोग ने डेक्स्ट्रो वाला स्ट्रक्चर लिया है कि नहीं? सेकेंड लास्ट कार्बन एटम OH ऑन द राइट हैंड साइड, सो इट इज डेक्स्ट्रो। रोटेशन वो दिखाएगा अपना लिवो वाला, लेकिन स्ट्रक्चर हमने कौन सा लिया है? डी वाला लिया है कि नहीं? तो इसलिए आप यहाँ पे क्या लिखोगे? डी।
समझा? क्लियर? Yes. अगर मैं इसको से फ्लिप करके लिखती ना, ओ एच इधर लिखती और एच इधर लिखती, तो मैं यहाँ पे लिखती अल्फा एल फ्रुक्टोफ्यूरानोस, बीटा एल फ्रुक्टोफ्यूरानोस। Once you're done, let me know. याद रखना इसमें C2 एनोमेरिक कार्बन होता है, उसमें C1 एनोमेरिक कार्बन होता है। अल्फा एंड बीटा आर कॉल्ड एज एनोमर्स ऑफ ईच अदर, दोनों का एंगल ऑफ रोटेशन होता है। दे बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव। ग्लूकोज इज कॉल्ड एज डेक्सट्रोज, फ्रक्टोज इज कॉल्ड एज लिव्यूलोज। ये सब एमसीक्यू के क्वेश्चंस है। दे बोथ आर रिड्यूसिंग शुगर, दे बोथ आर मोनोसैकेराइड्स। एक पायरन रिंग बताता है, एक फ्यूरन रिंग बताता है। आज मैं तुम लोग को इतना ही सिखाया ना, एक एसिटिक एनहाइड्राइड वाला रिएक्शन सिखाया, हाँ DNL वाला बताया मैंने बराबर, और स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए। ठीक है, नाउ वी आर ऑन पेज नंबर, आई विल जस्ट लेट यू नो, पेज नंबर 304 पे हैं हम लोग, ऑलमोस्ट हो गया 304। कल हम लोग पढ़ेंगे डाइसैकेराइड, सुक्रोज, माल्टोस, और क्या लिखा है इधर, लैक्टोस, पॉलीसैकेराइड्स पढ़ेंगे कल। स्टार्च है उसमें, सेलुलोज है, और बाद में हम, तो आप लोग का होमवर्क ये है, यू हैव टू फाइंड आउट the uses and the sources of carbohydrates in our day-to-day life. Uses and the sources of carbohydrates in our day-to-day life. मतलब कहाँ से मिलता है कार्बोहाइड्रेट्स, कौन कौन सी चीजों में होता है, और इसका क्या इम्पोर्टेंट रोल है, वो आप लोग मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, डिस्कस करेंगे हम लोग। डन, दिस इज डन, स्ट्रक्चर्स आर डन। यस मैम। ओके चलो, चैट बॉक्स में आ जाओ सब लोग फटाफट, क्वेश्चन आंसर। मिसू Do we वो have लास्ट to में show the Q2 arrows लिखा था। during the exam? हाँ हाँ, एरोज दिखाना पड़ेगा। हाँ बोलो ना, क्या हुआ यश? मिस वो बोलो। लास्ट का लाइन एक मिस रह गया। हाँ हाँ लिखो, ये सब सेम है, अंदर वाला मैंने इसे ड्रॉ नहीं किया, खाली इसको ही फ्लिप कर दिया, बाकी सब सेम है, आप लोग ड्रॉ करो वो। कल अपना दोनों टाइम लेक्चर रहेगा, मॉर्निंग इवनिंग, वेडनेसडे ना कल, मॉर्निंग इवनिंग दोनों रहेगा, और दोनों भी रेगुलर लेक्चर रहेगा। तो कल हम लोग देखते हैं, अगर हो गया ये चैप्टर तो खत्म कर देते हैं। डन मिस। डन, चलो अभी फटाफट चैट बॉक्स में आ जाओ सब लोग। How many molecules of acetic anhydride is required for the conversion of glucose to glucose pentacetate? Very good. 5 molecules. Shabash. If OH from the lowest side is on the right hand side, it is D configuration or L configuration? If OH from the lowest side is on the right hand side, it is called as D configuration or L configuration. Correct. सब लोग आंसर करो, हाँ सिर्फ 4-5 लोग हैं, उन लोग ही करते हैं आंसर हमेशा। एल कैसे होएगा यश? राइट साइड बोला मैंने, एल फॉर लेफ्ट, एल फॉर लीवो बताया था, फिर भी गड़बड़ करता है। हाँ भूलो मत, याद रखो। चलो अभी नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या आएगा? हाँ, ग्लूकोज इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ग्लूकोज इज ऑल्सो कॉल्ड एज, करेक्ट, वेरी गुड कन्हैया, वेरी गुड हेली। विच शुगर नहीं बच्चा, दिवेश ये बताओ कि अगर वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो व्हाट इट इज कॉल्ड एज? करेक्ट, डेक्स्ट्रोज, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड। चलो, व्हाट इज द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ग्लूकोज? What is the specific rotation of glucose? Clockwise or anti-clockwise, and what is the number? Yes, very good. Very good, Kashish. 59 नहीं है दिवेश, टाइपिंग एरर हो गया शायद।
हाँ 52 बराबर। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, fructose is also called as, fructose is also called as, करेक्ट, वेरी गुड। कीटोहेक्सोज है वो बराबर है, बट उसका दूसरा नाम क्या है यश? जैसे डेक्सट्रोज था वैसे इसका नाम क्या है? हाँ बराबर, लिब्यूलोज, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ फ्रुक्टोज? एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस लिखना। व्हाट इज द स्पेसिफिक रोटेशन? करेक्ट, वेरी गुड, इट इज माइनस 92.4 degrees, very good। चलो नेक्स्ट, fructose is represented by which structure, furanose or pyranose? Fructose is represented by which structure, furanose or pyranose? Furanose. Furanose is how many membered ring structure? Furan ring is how many membered ring structure? Correct, very good, it is 5 membered. And pyran is how many membered? Pyran ring, correct. Which heteroatom is present in the furan and pyran ring? Which heteroatom is present in furan and pyran ring? हेट्रोएटम मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और कौन सा एक एटम प्रेजेंट है फ्यूरन और पायरन रिंग में? वेरी गुड कशिश, वेरी गुड दिवेश, परफेक्ट, सबने सही आंसर किया। ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, वेरी गुड। In the cyclic structure of glucose, if OH is on the upper side, it is called as alpha or beta. Which anomer it is, alpha or beta? OH नहीं होता दिवेश, श्रुति OH नहीं रहता है, सिर्फ O रहता है, O। क्या बोला मैंने? OH is on the upper side, तो it is called as दिवेश, हाँ OH ऊपर रहेगा तो बीटा, OH नीचे रहेगा तो अल्फा। हाँ बराबर है, करेक्ट, हाँ हाँ बराबर, सॉरी वो कन्हैया ने रॉन्ग लिखा था, सॉरी सॉरी। हाँ वो मुझे सब लोग ऐसे बेटा बेटा लिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है सब लोग मुझे बेटा बोल रहे हैं। हाँ चलो ठीक है, अभी नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which carbon is acting as an anomeric carbon in fructose? Which carbon is acting as an anomeric carbon in fructose? Correct, वेरी गुड प्रियंका, वेरी गुड कशिश, शाबाश। और ग्लूकोज में कौन सा कार्बन रहता है एनोमेरिक कार्बन? C1, वेरी गुड। चलो तुम लोग का MCQ भी हो गया अभी, सब लोग नीट JEE में कौन सा आंसर दिवेश? फ्रुक्टोज में C2 एंड ग्लूकोज में C1, एनोमेरिक कार्बन, ठीक है। चलो नाउ वी विल मीट टुमारो, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू टुमारो, सेम टाइमिंग, शाम को भी लेक्चर रहेगा, ठीक है। चलो बाय बाय, बाय बाय, एंड करती हूँ।